वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला निहायत मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك ईमान वालों, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। मुमकिन है कि ये उससे बेहतर हो, और ना औरतें औरतों का मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हो। और आपस में एक दूसरे को आग न लगाओ और न किसी को बुरे लक़ब दो। ईमान के बाद किसको बुरा ना हो, और जो तौबा ना करे वही जालिम लोग हैं। إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم। ईमान वालों, बहुत बदगुमानियों से बचो। यकीन मानो कि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह हैं। और भेद न टटोला करो, और न तुम में से कोई किसी की गिबत करे। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? उससे तुमको घिन आएगी। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। या लोगों, हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर तुमको कुंभों और कबीलों में तकसीम किया ताकि एक दूसरे को पहचान सको। अल्लाह के नज़दीक तुम सब में बाइज़्ज़त वो है जो सबसे ज़्यादा डरने वाला है। यकीन मानो कि अल्लाह दाना और बाखबर है। सलाम।
हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, न हो मुमताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। ये थे वसीम अकरम अब्दुल जलील जो अपनी लहने दाऊदी से कुरान करीम की तिलावत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। Honorable Chief Guest and my dear Islamic brothers, dear friends, today I want to speak about a quality that is the heart of Islam, the beauty of the believer, and the secret of success in this life. My topic name is Fear of Allah. You can say Taqwa. Every human beings want peace, happiness, respect and success, but true peace and real success come only when the heart is connected to Allah, and belief that connects to Allah is fear of Allah. Fear of Allah does not mean being scared like a fear of cruel person. Fear is the light that guides the lost. Fear is the shield that protects from sin. Fear is the key that opens the doors of Jannah. Fear is the medicine that heals a broken heart. My dear brothers, sometimes our hearts become heavy. Sometimes our sins pile up. Sometimes we smile on the outside, but inside our soul is crying. And the only thing that can truly bring us back to love is fear of Allah. Fear of Allah, not fear that makes you run away, but fear that makes you run toward Allah, fall before Him, cry before Him and say, Ya Allah, I'm weak. Ya Allah, I make mistakes, but I still belong to you. Allah calls us with a voice full of love. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. O you who believe, fear Allah. This is not a voice of anger. This is the voice of a Lord who cares for us. A Lord who knows how easily we fall. A Lord who knows the storms inside our heart. A Lord who knows the every secret fear that no one else sees. Dear brothers, whoever trusts in Allah, Allah opens all the ways for him. Allah says in the Holy Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Whoever fears Allah, and Allah will make our way out for him. As our way out of depressions, our way out of problems, our way out of poverty, our way out of anxiety, our way out of every darkness. Fear Allah, and Allah will not let you walk alone. The hadith says, fear Allah wherever you are. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said in the Tirmidhi, ittaqillaha haythuma kunta. Fear Allah wherever you are. Fear Allah when you are alone. Fear Allah when you are dead. Fear Allah when you are angry. Fear Allah when no one is watching. Fear Allah when you feel lost. Because the one who sees your tears is the one who will open your doors. Why should we fear Allah? Because the every sin leaves stain on the heart. Because every wrong choice pushes us away from the one we need the most. Because every moment is spent far from Allah is a moment wasted from our life. Dear audience and my dear friends, one day every one of us will live in a grave alone, with no family, no mobile, no lives, no friends, only our deeds. Fear is the life. Fear is not in the color. Fear is not in the beard. Fear is in the heart. Allah says, وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. But what reads
Allah is your fear. My dear brothers and my dear friends, finally, if we will truly want happiness in this world and success in the hereafter, we must fill our heart the fear of Allah. May Allah bless us with true fear, protect our heart, guide our action, and among His obedient servants. Amen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. की भी आबियारी की जाती है ताकि हमारे यहाँ से जो बच्चे निकले वो जिंदगी के किसी भी मैदान में कामयाब हो सके और पीछे ना रह सके, और जो असली उलूम के माहिरीन है उनके हम कदम हो सके। लिहाजा अब मैं हिंदी ज़बान में एक तकरीर पेश करने के लिए असरार आलम मोहम्मद अजीज आपको दादा असरार आलम मोहम्मद हुसैन दर्जा अरबी पंजुम आप आए और हिंदी ज़बान में एक तकरीर पेश करें। प्रथम माता पिता पर प्रथम अधिकार जीवित रहने का है। विवाह के बाद दंपति के बीच शारीरिक संबंध केवल मनोरंजन और आनंद के लिए नहीं, बल्कि इसका एक मुख्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य अपनी प्रजाति को बढ़ाना है। कबीले जनजाति में कुछ कबीले जनजाति वाले अपने संतान को आर्थिक या धार्मिक कठिनाइयों के कारण हत्या कर देते थे। विशेष रूप से जब किसी घर में लड़कियों का जन्म होता तो उनका चेहरा शर्म से काला हो जाता। शर्म और लज्जा से वो दुर्विधा में पड़ जाता कि क्या उसे अपने पास रख करके अपमान तथा तिरस्कार का सामना किया जाए या उसे जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया जाए। मगर इस्लाम ने बालक की हत्या को कानूनी अपराध घोषित किया है। कुरान में वर्णन है, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितन कबीरा, कि तुम अपने औलाद को आर्थिक अभाव पर हत्या न करो, उन्हें और तुम्हें हम भोजन देते हैं, बेशक उनकी हत्या करना एक बहुत बड़ा पाप है। प्रिय सहपाठियों, बालकों का दूसरी अधिकार पालन पोषण का है। इस्लाम धर्म ने माता पिता को अपने बच्चे के अस्तित्व एवं विकास के लिए उत्तरदायी बनाया है। यही कारण है कि अल्लाह ताला ने माता पिता को अपने बच्चे के भोजन का प्रबंध करने, उन्हें बीमारियों से बचाने और उन्हें दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इसी प्रकार बालकों का तीसरा अधिकार शिक्षा का अधिकार है। प्रिय सहपाठियों, शिक्षा बालकों का महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है और बालकों की व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इस वाक्य से लगाया जा सकता है कि बदर की लड़ाई में कैदियों से कहा गया, तुम में से जो लिखना जानते हो वो 10-10 बालकों को लिखना पढ़ा दो, लिखना सिखा दो, यही तुम्हारा दंड होगा और तुम आजाद कर दिए जाओगे। प्रिय सहपाठियों, बालकों का चौथा अधिकार विरासत का अधिकार है। बालक के संवैधानिक अधिकारों में से एक अधिकार विरासत का अधिकार है। इस्लाम ने न केवल बालकों को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार दिया है, बल्कि उनके लिए हिस्से भी निर्धारित कर दिए हैं ताकि कोई अन्याय ना हो। लेकिन आज इस उन्नति के दौर में पिता की संपत्ति में केवल बेटे को हिस्सा दी जाती है और बेटियों को नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में वर्णन किया है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लुल हज़्ज़ि उन्सयैन।